Learners, this is your trainer and guide Aishwarya Seth, welcoming you all to this India's first social and revolutionary educational platform, that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. Students, I started this channel on 1st April 2020 during this lockdown period, that is 2 months back, with the mission of imparting absolutely free of cost education to students all over India regarding various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Master Cadre, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed, and guys, even much more we are going to provide and launch on this same channel in the future. So our mission here is to provide complete and full-fledged coachings of these entrance exams 100% free, basically to those students who can't afford these exclusive courses due to their financial constraints on or any other reason. So even through this educational platform, each and every student of India can get quality education at zero cost. So students, you don't need to go for any expensive online or offline classes, don't need to purchase any kind of study materials, course contents, books and all you need is to subscribe this complete educational hub and your purposes will be solved. So those students who haven't subscribed yet, please subscribe this channel right now. And one more request, please share and spread this educational platform with your siblings, colleagues, friends, peer groups, relatives who really want to crack these competitive exams throughout India. So students, as you all know that every weekend I cover the most important previous year questions of the topics which I taught you throughout a particular week. So in this whole week I taught you the topics of email, audio and video conferencing, digital initiatives in higher education, along with the ICT governance in ICT, that is Information and Communication Technology, which is the 8th unit of UGC paper 1. So in today's video, this is the weekend as you all know, so in today's video I will cover the previous year question answers of these topics which I had covered this whole week, right? So 4 हमने टॉपिक्स करे थे इस वीक में, और उनमें से ही जो है आज क्वेश्चंस मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगी, जो बहुत ही मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप सुनिएगा और इनको देखिएगा, ठीक है जी। सो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वाई वुड BCC बी यूज इन एन ईमेल। ईमेल की फैसिलिटी में जो BCC का जो डोमेन है या कंटेंट है वो किस लिए यूज़ होता है। तो आपने वीडियो मैंने देखी होगी, ठीक है जी, ईमेल की, और बाकी सारी वीडियोस भी देखी होंगी इस वीकेंड इस पूरी वीक वाली। और अगर नहीं भी देखी हैं तो प्लीज़ आज की वीडियो देखने से पहले जो आज की थ्रू आउट वीक मैंने कराई है डिफरेंट वीडियोस, वो ज़रूर देखें, ताकि वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, आपको समझ भी आएगी। जब देखेंगे ही नहीं तो आपने टॉपिक तो करा नहीं होगा प्रिपेयर, तो आपको फिर अभी दिक्कत आएगी इस वीडियो में, ठीक है जी। सो इस तरह से अब BCC क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है जी। वो क्यों यूज़ करते हैं ईमेल में, कि जो रिसिपिएंट्स को या जिन भी एड्रेसेस को हम हाइड करना चाहते हैं बाकी रिसिपिएंट्स को दिखाने से, सेम मेल जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो मैं लेती हूँ कि अगर मैंने किसी को मेल भेजनी है, ठीक है जी, तो मैं 10 पर्सनस को, अलग अलग 10 पर्सनस को, किसी का 2 में लिख देती हूँ, किसी का CC में मतलब कार्बन कॉपी में लिख देती हूँ किसी के एड्रेसेस, किसी एक, और अपने बॉस का, एक अपने अल्टीमेट बॉस का जो मैं एड्रेस है वो BCC में लिख देती हूँ, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के कॉलम में उसका एड्रेस डाल देती हूँ अपने बॉस का। क्योंकि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेल मैंने भेजी है बाकी सारे पेयर ग्रुप्स को, उनको ये ना पता लगे कि ये जो सेम मेल है मैंने बॉस को भी फॉरवर्ड की है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। BCC में वही एड्रेसेस डालते हैं, ईमेल एड्रेसेस डालते हैं जिनको हमने हाइड करना होता है, कॉन्फिडेंशियल रखना होता है बाकी रिसिपिएंट से, ताकि वो ना जाने कि और कौन सा जो है वो मतलब BCC में कौन कौन से एड्रेसेस पे हमने डाली है, ठीक है। सो उसका यही यूज़ है। तो इस हिसाब से इस पूरे क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन आप देखें कि वो बिल्कुल सही जा रही है क्वेश्चन के साथ। BCC अलाउज द सेंडर ऑफ अ मैसेज टू कंसील द रिसिपिएंट एंटर्ड इन द BCC फील्ड फॉर्म फ्रॉम अदर रिसिपिएंट। दूसरे रिसिपिएंट से हमने कंसील कर दिया, हाइड कर दिया, ठीक है जी, उसको कॉन्फिडेंशियल रख लिया कि BCC में हमने ये वाला एड्रेस डाला है। तो यही हमारी जो है वो मंशा है कि हमने उसको नहीं दिखाना। तो यही राइट आंसर है, BCC का क्यों यूज़ करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं जा रही हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। एन अनसॉलिसिटेटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी पार्टिसिपेंट एट वंस इज़ अ, ठीक है जी, एक अनसॉलिसिटेटेड मतलब जंक मेल है ये,
ठीक है जी। जंक मेल या स्पैमिंग या स्पैम मेल जो है वो कहता है अनसॉलिसिटेटेड जो ईमेल है वो एक ही बार में उस ईमेल को नंबर ऑफ रिसिपिएंट्स के जो है एंड पे भेजा गया है, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? उसको सीधा सा इसका आंसर है, उसको स्पैम बोलते हैं। आपने भी अपने इनबॉक्स में, सॉरी, आपने अपने जो आपका ईमेल आपका मेल आईडी है, याहू पे है, गूगल पे है, जीमेल पे, कहीं पे भी है, उसमें इनबॉक्स आता है, फिर सेंट आइटम्स आती हैं, फिर नीचे स्पैम आता है। स्पैम में हर तरह की यूजलेस मेल्स आती हैं, अनसॉलिसिटेटेड मेल्स आती हैं या फिर जंक मेल्स आती हैं, ठीक है जी, तो जो हमें यूज़ में नहीं आती हैं या हमारी यूसेज की नहीं होती है। वही वो पूछ रहा है उसका अदर नाम क्या है, एंड अनसॉलिसिटेटेड ईमेल का जो है अदर नाम क्या है, उसको किस नाम से और जानते हैं? उसको स्पैम भी बोलते हैं और उसको तीसरा नाम भी आपको बता देती हूँ मैं, उसको जंक मेल्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। सो इसका राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स इन MS वर्ड। सिंपल सी बात है कि इसमें वो कह रहा है कि MS वर्ड की ऐसी कोई फैसिलिटी आप बताइए, उसका नाम बताइए जिसके थ्रू हम एक ही मेल जो है नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स को एक ही क्लिक के साथ भेज सकते हैं। एट वन टाइम एक ईमेल जो है हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स को एक ही मेल जो है वो भेज सकते हैं। ऐसी कौन सी फैसिलिटी है? मेल मर्ज। कौन सी है? मेल मर्ज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट कि मेल मर्ज की फैसिलिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, सेम लेटर डिफरेंट पर्सन्स को, MS वर्ड की एक टूल है ये, उसकी सहायता से हम एक ही क्लिक में जो है हंड्रेड्स ऑफ जो है पर्सन्स को सेम मेल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? दैट इज़ डैश इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर, ठीक है जी। एक ऐसा प्रोटोकॉल बताइए जो कि ईमेल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, किस लिए? टू डाउनलोड ईमेल्स टू योर कंप्यूटर, मतलब सिर्फ डाउनलोड करने के लिए, ईमेल्स को रिसीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, डाउनलोड करने। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है? अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं आपको बोला था कि जो है 3 तरह के मेन है वो ईमेल प्रोटोकॉल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक SMTP है, एक POP है, एक IMAP है, ठीक है जी। SMTP, POP, IMAP। जो SMTP है वो मेल्स को सेंड करने वाला प्रोटोकॉल है, उसके द्वारा हम मेल्स को सिर्फ सेंड कर सकते हैं। और बाकी के जो दो हैं, POP एंड IMAP, वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिसके द्वारा हम मेल को डाउनलोड कर सकते हैं, सेंड नहीं कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसने वही पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हाँ जी, कौन सा है इसमें? पॉप है। TCP नहीं है, FTP नहीं है, SMTP नहीं है, पॉप और IMAP ये दोनों ही है डाउनलोड करने वाले मेल को, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है? D, पॉप। नेक्स्ट चलते हैं, SMIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म उसने पूछी है। इंटरनेट में जो है SMIME की फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए, सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है जी। ये भी एक मेल एक्सटेंशन है जिसकी फुल फॉर्म उसने पूछी गई है, ठीक है जी। तो बहुत ही एक नर्वस करने के लिए, बहुत जैसे मल्टीपर्पज़ की जगह मल्टीमीडिया लिख दिया, ठीक है जी। इंटरनेट की और एक्सटेंशन की जगह उन्होंने मतलब सिक्योर की जगह सिंपल कर दिया, मतलब इस तरह के मिलते जुलते वर्ड्स जो हैं वो ऑप्शंस में डाल देते हैं। तो जब तक आपको उसका पता नहीं होता फुल फॉर्म तो आप नहीं आंसर कर पाते। तो इसका आंसर क्या है? सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन ए विल गो विद द आंसर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ, एक ईमेल जो एड्रेस है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। जो हम @ लगाते हैं सेंटर में, ठीक है, उसके अगला पहला वाला जो है एक वो पार्ट हो गया, और जो @ के बाद हम लगाते हैं वो सेकंड पार्ट हो गया। सो ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है जी। नो 3 पार्ट्स, नो 4 पार्ट्स, नो 5 पार्ट्स, इट इज़ ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, कोरल ड्रॉ इज़ अ पॉपुलर। कोरल ड्रॉ क्या होता है? एक मतलब एक आप कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर है, और ये ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, लोगोज़ के लिए यूज़ होता है। कोई आपने जैसे लोगोज़ डेवलप करने हैं, या कोई पैम्फलेट्स डेवलप करने हैं, कोई इमेज डेवलप करनी है, ठीक है जी, या कोई प्रिंटेड मटेरियल कलरफुल डेवलप करना है, उसके लिए कोरल ड्रॉ यूज़ होता है, ठीक है जी। सो ये वो कहता है वो कोरल ड्रॉ है क्या एक्चुअली? इलस्ट्रेशन प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टेक्स्ट प्रोग्राम है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है जी।
ये बिल्कुल क्या है, ये इलस्ट्रेशन प्रोग्राम है, मीन्स इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जिसमें हम ग्राफिक्स को डेवलप करते हैं। ठीक है जी, सो इट्स आंसर इज ए, इलस्ट्रेशन प्रोग्राम। ठीक है जी, सो कोरल ड्रॉ इज अ पॉपुलर इलस्ट्रेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ ईमेल। अब देखिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। अब ईमेल वो कहता है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जो ईमेल एड्रेस है, वो इसमें से कौन सा बिल्कुल सही वाला है। ठीक है जी, URL कौन सा सही वाला है ईमेल का। ठीक है जी, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत जनरल क्वेश्चन है। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बी, www@mail.com, राइट। मतलब कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं जा रही, अंडरस्कोर नहीं आता मेल के पहले। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल जा रही है। थर्ड ऑप्शन जो है वो www उन्होंने कैप्स में लिख दिया, कैप्स में नहीं होता। ठीक है जी, और लास्ट में क्या है, @ नहीं डाला, डी ऑप्शन में। ठीक है जी, तो एक फॉर्मेट जो है, एप्रोप्रिएट फॉर्मेट है, URL है ईमेल का, वो कौन सा इसमें से है, वो बी ऑप्शन है, www@mail.com। मतलब एक जनरल सी है, मतलब कोई भी मेल हो सकती है, जीमेल या याहू कोई भी हो सकती है। उन्होंने जनरली आपसे पूछा है कि कौन सा जो है एप्रोप्रिएट फॉर्मेट है, तो बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब ये ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको ब्रॉडन कर देती हूँ। ये बहुत, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हर सेट में आया हुआ है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहता है गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेसेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज। मतलब स्वामी एक रिसिपिएंट है जिसको मैसेज जा रहा है, ईमेल जा रही है। अब वो कहता है स्वामी और कौन कौन से ईमेल एड्रेसेस को देख सकता है कि कौन कौन से रिसिपिएंट को गई है मेल। ठीक है जी, तो अभी उसका एक फॉर्मेट देखिए उन्होंने क्या बोला है। एक उन्होंने बताया है 2 में राम का एड्रेस है, कार्बन कॉपी में राज और रवि का एड्रेस है, BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी में स्वामी और रामा का एड्रेस है। उसने क्या पूछा कि दोबारा रिकॉल करते हैं कि स्वामी किस किस को देख सकता है, सिर्फ स्वामी के बारे में पूछा और किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी एड्रेस के बारे में उसने नहीं पूछा। तो देखिए अब स्वामी, अब आप खुद सॉल्व करें, आपको BCC मैंने डिटेल में कराया है, तभी मैंने बोला कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी इलेक्ट्रॉनिक मेल वाली या कोई भी वीडियो इस वीकेंड वाली, इस वीक वाली नहीं देखी, तो प्लीज़ पहले देखें। टेक्निकल क्वेश्चन है। अब आपको मैंने बताया था कि जो BCC वाले हैं, मतलब स्वामी किस में लाई कर रहा है, BCC में। ठीक है जी, तो जो BCC वाले हैं वो 2 वालों को, ठीक है जी, CC वालों को और बाकी जैसे टू, फ्रॉम और CC वालों को देख सकता है, लेकिन अपनी ही कैटेगरी के पर्सन्स को नहीं देख सकता। ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला जो रिसिपिएंट है वो बाकी सारे ईमेल एड्रेसेस को देख सकता है, टू, फ्रॉम, CC वाले सबको देख सकता है, लेकिन अपनी ही लेन वाले, मतलब अपनी जो BCC वाले और बंदे हैं उनको नहीं देख सकता। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए स्वामी अब किसको देख सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया वो फिर क्या आंसर क्या होगा, वो 2 वाला देख सकता है, मतलब राम को देख सकता है, CC वाला देख सकता है, राज और रवि को देख सकता है, और खुद वो BCC में है लेकिन अपने ही डोमेन का जो उसका रामा है उसको नहीं देख सकता। मैंने आपको भी क्या बताया कि बाकी सबको देख सकता है, अपने डोमेन वालों बंदों को नहीं देख सकता। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन गलत है कि सिर्फ राम को देख रहा है। बी ऑप्शन राम को भी देख रहा है, राज को भी देख रहा है, रवि को भी देख रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, थर्ड गलत हो गया कि सिर्फ राम और रामा को देख सकता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ में वो कहता है राम, रामा, राज और रवि सबको ही देख सकता है, मतलब अपने साथ वाले BCC वाले को भी देख सकता है। नहीं, तो इसका आंसर क्या है, इट्स आंसर इज 2, दैट इज राम को देख सकता है, राम मतलब 2 वाले को देख सकता है, CC वाले को, राज को और रवि को देख सकता है, तभी इसका आंसर क्या है 2, राम, राज, रवि। टेक्निकल क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है वो ऐसे आंसर्स जो है वो गलत कर सकते हैं। तो तभी मैंने बोला था कि आप डिटेल में हर एक वीडियो को देखें, तभी आप वीकेंड पे इस क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी ईमेल से जो है वो क्वेश्चन डाला है मैंने, डैश रेफर्स टू द ईमेल मैसेजेस दैट फेल टू रीच देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। अब एक ईमेल एक यूज़र ने भेज दी, ठीक है जी, सेंड कर दी, लेकिन वो जिस डेस्टिनेशन पे भेजी उस डेस्टिनेशन पे वो पहुंची ही नहीं, फिर वो कम बैक हो गई, उसके पास दोबारा आ गई, वापस आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी को लेटर भेजी, उस एड्रेस पे नहीं पहुंची और वो हमें ही दोबारा मिल गई, वापस हमारे पास ही आ गई।
तो इस तरह की ईमेल के पर्सपेक्टिव से कौन सी ऐसी जो है वो क्राइटेरिया है इसका डैश रेफर्स टू द ईमेल मैसेजेस दैट फेल टू रीच देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। तो इसका आंसर सीधा सीधा है ईमेल बाउंस। ईमेल फेलियर नहीं है, ईमेल एक्सेप्शन नहीं है, ईमेल रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? ईमेल बाउंस रेफर्स टू द ईमेल मैसेजेस दैट फेल्स टू रीच देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। NMEICT स्टैंड्स फॉर, ये भी एक एक्रोनम आया, फुल फॉर्म आया है। और ये क्या है आपको अब ICT गवर्नेंस में से ये क्वेश्चन आया है। अब जितने भी आगे क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में आएंगे वो ईमेल वाले तो अभी ख़त्म हो गए। अब जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे बारी बारी कौन से आएंगे? ICT गवर्नेंस के आएंगे और डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन वाले आएंगे, राइट। तो आप ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। NMEICT स्टैंड्स फॉर, हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? दिस वन। बाकी जो हैं वो गलत हैं, ई गवर्नेंस नहीं है, ई कॉमर्स नहीं है, ई लर्निंग नहीं है। ठीक है जी, कितने मिलते जुलते से क्वेश्चन डाल देते हैं कि जो है वो पार्टिसिपेंट या जो पेपर दे रहा है वो कन्फ्यूज़ ही हो जाए। लेकिन कन्फ्यूज़ क्यों नहीं होंगे हम? क्योंकि हम फर्म होते हैं। अगर हमने अच्छे से पढ़ा होता है तो हम बिल्कुल फर्म होते हैं अपने आंसर में। ठीक है जी, सो फर्स्ट वन इज़ द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखिए। नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, ये ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आ गया। नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेट एक्सेस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड शेयरेबल डाटा इट वॉज अडॉप्टेड इन, मतलब ये जो पॉलिसी है डाटा नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, ये किस ऑब्जेक्टिव से फॉर्म हुई थी? टू फैसिलिटेट एक्सेस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड शेयरेबल डाटा। ठीक है जी, पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो शेयरेबल डाटा है उसके लिए शुरू हुई थी। लेकिन ये कौन से ईयर में आई थी उसने ये पूछा है। ठीक है जी, इस कौन से ईयर में आई थी, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, ये पॉलिसी कब आई थी? 2012 में आई थी। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2012 में नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सो ये बहुत ही और पॉलिसी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है डिजिटल इनिशिएटिव्स में, राइट। सो ये इसका आंसर क्या है? 2012, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीन के ऊपर देखिए आप। Who issued the notification that system providers should store the entire data relating to payment systems only in India? कि अब ये क्या है? ये एक सिक्योरिटी इशू वाली जो है वो एक नोटिफिकेशन आई थी। और ये नोटिफिकेशन वो कह रहा है कि किसने इशू की थी। नोटिफिकेशन क्या थी? दोबारा पढ़ देती हूँ। Who issued the notification that system providers should store the entire data related टू पेमेंट सिस्टम्स ओनली इन इंडिया? जो भी पेमेंट्स वगैरह या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी पूरी की पूरी जो सेविंग है, स्टोरेज है, वो जो है इस पोर्टल पे होती है। लेकिन ये जो है ये नोटिफिकेशन किसने जारी की थी? हाँ जी, आया कुछ माइंड में आपके? हाँ जी, इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन इशू की थी RBI ने। ठीक है जी, कि जितनी भी एंटायर इन्फॉर्मेशन है पेमेंट रिलेटेड वो इंडिया के ही पोर्टल में एज अ स्टोरेज जो है वो आए उसमें। ठीक है जी, ताकि ये सिक्योरिटी एक मेंटेन हो सके और ये कॉन्फिडेंशियल रह सके इस तरह की ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन से। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। द डाटा गवर्नेंस काउंसिल, अब फिर से ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आ गया। द डाटा गवर्नेंस काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग लेड बाय विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ये जो काउंसिल है, ये जो डाटा गवर्नेंस काउंसिल है, ठीक है जी, इसको जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेड कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग लेड बाय विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी, कौन सी है जी? IBM इसका राइट आंसर है। ये सारे अब देखिए डिजिटल इनिशिएटिव्स में से और ई गवर्नेंस में से बिल्कुल आपको पॉलिसीज़ या कोई स्कीम्स या इस तरह के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। समझने समझाने वाले नहीं हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ आने वाले हैं कि आपको आता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई। हाँ जी, ठीक है, और वो कौन सी स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव था वो लिखा हो सकता है, या उसकी स्कीम की फुल फॉर्म क्या है,
ठीक है, और वो किसने जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया या लॉन्च किया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें समझने समझाने वाली कोई बात नहीं होती। हाँ, इसमें जो है आपको आंसर जो है अगर आपको आता है और आपको पता है कि किसने कब लॉन्च किया, तभी आप इसको जो है वो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है जी। और आईसीटी गवर्नेंस में एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन में ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है जी। पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चंस आए भी हुए प्रीवियस ईयर में, तभी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। सो इसका आंसर क्या है जी, आईबीएम, ठीक है जी। आईबीएम ने डाटा गवर्नेंस काउंसिल को लेड किया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द स्क्रीन यू आर सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Unique Identification Authority of India UIDAI was initially created as an attached office under the aegis of, हाँ जी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जो इंडिया की है वो इनिशियली जब वो शुरू हुई थी, इनिशियली क्रिएटेड एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द एजिस ऑफ, किसके साथ अटैच की गई थी? ऑप्शंस देखिए, ए है प्लानिंग कमीशन, बी है नीति आयोग, सी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड डी है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी, आया कुछ दिमाग में आपके? कोई गेस वर्क, या अगर आपको पता है तो आपका आंसर आ गया होगा दिमाग में। हाँ जी, इसका आंसर है ए, प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन इसका आंसर है, जिसके साथ ओरिजिनली इनिशियली जो है UIDAI जब क्रिएट हुआ था उसको अटैच्ड ऑफिस किया गया था इससे, प्लानिंग कमीशन से। इसकी आंसर क्या है, ए, प्लानिंग कमीशन। अब एक और क्वेश्चन, एक और आपको मैं चीज़ यहाँ से बता दूँ कि प्लानिंग कमीशन पहले था, अब प्लानिंग कमीशन किस में कन्वर्ट हो चुका है, नीति आयोग में। नीति आयोग अब 5 ईयर प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है। ये मैं आपको बात एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि प्लानिंग कमीशन अब नहीं होता, 5 ईयर प्लानिंग नहीं होती है। प्लानिंग कमीशन इज़ नाउ रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग, ठीक है जी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था UIDAI, इसको किसके साथ कोलैबोरेट किया गया था, प्लानिंग कमीशन, तब प्लानिंग कमीशन होता था, अब नहीं है, लेकिन उस वक्त होता था इनिशियल प्लानिंग कमीशन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब वो कहता है अब ये देखिए और बताइए कि ये कौन सा सेक्शन इस पे अप्लाई हो रहा है। आप पहले स्टेटमेंट पढ़िए, बॉडी कॉर्पोरेट हु इज प्रोसेसिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डाटा एंड इज नेग्लिजेंट इन इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन wrongful loss or wrongful gain to any person, then such body corporate may be held liable to pay damages to the person so affected. So ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है, किसके पर्सपेक्टिव से, इन IT एक्ट 2000 के पर्सपेक्टिव से। और वो कह रहा है ये जो पूरा का पूरा एक क्लॉज है, ये इस एक्ट के कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, IT एक्ट 2000 के कौन से सेक्शन में ये जो पूरा का पूरा जो है ये क्लॉज है। टू विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट इज दिस प्रोविजन रिलेटेड टू, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको आज का आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है जी, दैट इज ऑप्शन सी, सेक्शन 43A। सेक्शन 43A, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी, जिसमें ये प्रोविजन जो है IT एक्ट 2000 के रिगार्डिंग जो है ये तो वहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है जी। सो सी इज़ द ऑप्शन, सेक्शन 43A। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज डिजाइंड फॉर इंजीनियर्स, ठीक है जी। अब ये किस में से क्वेश्चन आया है, ये डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन में से क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। डिजिटल इनिशिएटिव्स का क्वेश्चन है, तो वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज डिजाइन फॉर इंजीनियर्स। ज्ञान है, ई कल्प है, विद्वान है, ई यंत्र है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इनिशिएटिव जो है स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए या इंजीनियर्स के लिए डेवलप किया गया था? हाँ जी, कौन सा है, ई यंत्र। अब आप दिमाग में बिठा लीजिए, आपको मैंने दो पार्ट्स में क्या करवाया है, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, पार्ट 1 पार्ट 2, टोटल 30 स्कीम्स करवाई हैं मैंने आपको। इसी वीक में आप सारी वीडियोस देखिए, उसमें 2 वीडियोस आपको डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन की मिल जाएंगी। पार्ट 1 में 15 करवाई हैं और रेस्ट ऑफ द 15 पार्ट 2 में करवाई हैं। टोटल 30 जो है डिजिटल इनिशिएटिव्स कराए हैं मैंने, डिटेल में कराए हैं आपको।
कि कब क्या लॉन्च हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या था, किसने लॉन्च किया था, कौन से ईयर में आया था, ठीक है, ये सारा कुछ, और कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो इंजीनियर्स के लिए कौन सा है, ई यंत्र। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ई यंत्र इज द इनिशिएटिव डिजाइंड फॉर द इंजीनियर्स बाय MHRD। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, द नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्युएशन NPSSE, the National Program on School Standards and Evaluation, known as DASH, is a comprehensive instrument for school evaluation। हाँ जी, स्कूल इवेल्युएशन के लिए, जैसे वो कहते हैं ना इंस्पेक्शन, स्कूल्स की इंस्पेक्शंस होती हैं, उसका ये वाला जो NPSSE है, ठीक है जी, National Program on School Standards and Evaluation NPSSE is known as DASH, is a comprehensive instrument for school evaluation। हाँ जी, बताइए क्या है इसमें आंसर। इसमें आपका आंसर है, हाँ जी, आया कुछ दिमाग में आपके, इसका आंसर है सी ऑप्शन, शाला सिद्धि। शाला सिद्धि is a comprehensive instrument for school evaluation under NPSSE, right? So इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शाला सिद्धि। ये NPSSE का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए, स्कूल की फुल फ्लज इवेल्युएशन करने के लिए, राइट? इसमें भी कुछ पैरामीटर्स होंगे जिस पैरामीटर्स पे इवेल्युएशन की जाती है। सो शाला सिद्धि, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, Which is the e-governance platform for all केंद्रीय विद्यालय in the country? केंद्रीय विद्यालय के लिए कौन सा ऐसा ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है जो थ्रू आउट कंट्री जो है वो डेवलप किया गया है, स्पेशली फॉर किसके लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म कौन सा है। हाँ जी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शाला दर्पण। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शाला दर्पण is the platform for all Kendriya Vidyalayas in the country, right? Next चलते हैं, a scheme called Dash has been launched which will bring world class educators from across the globe to teach in India। पूरे इस हमारे नेशन में वर्ल्ड क्लास, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, या रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या बहुत ही बड़े बड़े जैसे टीचर्स हैं जो वाकई डेजिग्नेट्स हैं, उनको पूरे वर्ल्ड में से इनवाइट किया गया, इंडिया में जो है उनके लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस तरह की स्कीम को क्या कहते हैं, हाँ जी, इस तरह की स्कीम को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है या डी है। हाँ जी, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, इसका आंसर है ज्ञान, GIAN, ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स, ज्ञान is a scheme that has been launched which will bring the world class educators from across the globe to teach in India। ठीक है जी, ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है MHRD का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर आगे भी पूछे जा सकते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लीज़ मेरी वीडियो देखिएगा इस वीक की। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज़ अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने कौन सा ऐसा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करा है। ठीक है जी, सो इसका आंसर है ई, या ग्रंथालय। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ई ग्रंथालय इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राइट। लास्ट क्वेश्चन आज की प्रेजेंटेशन का, आज की वीडियो का 22nd क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। दैट Dash is the premier database of profiles of scientists and researchers and other faculty members working at leading academic institutions and other R&D, research and development organizations involved in teaching and research in India। हाँ जी, अब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताना है जिसमें सबके, जैसे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो लीडिंग जो है मेंबर्स हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, उनका ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है वो आके टीचिंग एंड रिसर्च जो है वो कोलैबोरेटिव सिस्टम में करवाते हैं। ऐसा कौन सा है प्लेटफॉर्म, हाँ जी, ऐसा है सी, विद्वान। सक्षम नहीं है, सारांश नहीं है, उन्नत भारत अभियान नहीं है, क्या है, सी, विद्वान।
Vidwan is the premier database of profiles of scientists and researchers and other faculty members working at leading academic institutions and other R&D organization involved in teaching and research in India. ठीक है जी, रिसर्च के लिए ये जो है ये बनाया गया है विद्वान। ये भी बहुत ही बढ़िया और अपकमिंग डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHRD के थ्रू। सो आज की वीडियो में पूरे 22 के 22 क्वेश्चंस डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स मैंने आपको इस वीक में करवाए थे वो आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अभी लाइक कर दें फटाफट से, ठीक है जी, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े और हम आगे आगे भी जो है आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहें। और हमारा जो मिशन है वो आपकी कोलैबोरेशन से, आपकी हेल्प से, आपकी लाइकिंग से, आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपकी शेयरिंग ऑफ दिस चैनल से ही अचीव होगा थ्रू आउट इंडिया। ठीक है जी, 2 मंथ्स हुए हैं इस चैनल को स्टार्ट हुए और आज तक का जितना रिस्पांस मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आई एम रियली ग्लैड टू सी योर रिस्पांस एंड डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस ऑन दिस सेम प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पे करंटली सीटेट, पीटेट, NVS, KVS की क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है जी, जो सीटेट या टेट एस्पिरेंट्स है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, UGC वाले भी सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में भी हम आपके लिए और कोर्सेज लेके आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट and stay tuned for the next video. Until then, God bless you all and bye bye for now.